Friends, so let us discuss again from chapter 3 where we have left that compounds that are atoms of different elements combined together in a definite proportion to form compound. As you have studied in chapter 2 also, that different elements combined with a fixed ratio of volume or mass to form a new substance that is called as compound. For example, carbon dioxide. Carbon, one atom of carbon combines with two atoms of oxygen to form carbon dioxide. Means by volume it combines 1 ratio 2, that one atom combines with two atoms. Or by mass it combines 3 ratio 8. That is, the atomic weight of carbon is 12 and atomic weight of oxygen is 16. So 2 atoms of oxygen means 16 multiplied by 2, 32. So 12 ratio 32, when you simplify you will get 3 ratio 8. So in atom, when atom combines to form a different substance, that is called as compound, and they combine in a fixed ratio of by volume or mass according to the Dalton's atomic theory. Now come to the concept of atom and ion. In chapter 4 we have studied what is the structure of atom, that atom is a smallest particle which consists of positive charge particle known as protons, negative charge particle called as electron, and neutral particles that we called as neutrons. They had nucleus in which proton and neutrons lies, and electron revolve around the nucleus in a fixed energy shell that are known as orbit. Now, when we supply energy, then atom can lose electron or atom can gain electron. When atom loses or gain the electron, it converted into charged particle. That charged particle is known as ion. If atom loses electron, then it has extra positive charge, so it has known as positive charged ion, or we call it as cation, or that is called as positive radical. Similarly, if it gain electron, then it has extra negative electrons and means it has negative charge called anion or negative charged radical. Therefore, what is anion? That means an atom that bear a charge is called as ion. Type of ions: anion and cation. Anion having negative charge and cation has positive charge. So one question arises: difference between atom and ion. So atom and ion, atom is number one, atom is electrically neutral and ion carries charge, that is either positive or negative. Cation can be called as positively charged ion, and when they become the positive, an atom becomes positively charged ion when it loses electron. जब ये इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो एटम के पास प्रोटॉन ज़्यादा हो जाते हैं, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन कम हो जाता है, तो इसका मतलब एटम के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाता है? पॉजिटिव चार्ज. मीन्स when they lose electron, have electrons less than those in the
neutral atom. Anion. They are called negatively charged ions. When atom gain electron and have electrons more than in a normal atom, then it is called as anion. For example, आपके पास कोई एटम A है, उसमें नेगेटिव चार्ज भी 16 है और पॉजिटिव चार्ज भी 16 है. अगर वो बाहर से एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है तो नेगेटिव चार्ज कितने हो गए 17 और पॉजिटिव चार्ज क्या है वो तो सेम रहेगा 16. तो वो उसके ऊपर कितना नेगेटिव चार्ज एक्स्ट्रा हो गया 1. तो इसलिए हम क्या लिखेंगे A-1. सिमिलरली अगर वो एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज क्या हो जाएगा 15 और पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा 16. तो वहाँ क्या आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज और वो उसको हम क्या बोलेंगे कैटायन. इज वैलेंसी. This also you have studied in the structure of atom. What is this? It is the combining capacity of an atom. It depends upon valence electron. Valence electron क्या होते हैं? Outer most orbit में जितने electrons होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? Valence electron. तो valency can be negative or valency can be positive. Means atom can lose electron. When it will lose, it will positive, and when it will gain, it will negative. Basically, some element have fixed valency and some have variable valency, that is 2 or more than 2 valency. Means it combines with the other elements by losing more than 2 or 3 electrons. So they are called as, for example, Fe 2 positive में भी ये एग्जिस्ट करता है, कंपाउंड्स बनाता है. Fe 3 वैलेंसी की फॉर्म में भी कंबाइन करता है. कॉपर एक इलेक्ट्रॉन भी लूज़ करता है और किसी किसी के साथ ये 2 इलेक्ट्रॉन्स भी लूज़ करता है. व्हेन इट हैज़ लेस वैलेंसी, छोटी वैलेंसी है मतलब सिंगल इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रहा है, तो इसको बोलते हैं अस. मीन्स फॉर एग्जाम्पल आयरन 2, तो क्या बनेगा फेरस. और जब ज़्यादा वैलेंसी है तो उसके लिए क्या यूज़ करते हैं इक, फेरिक. तो आपको समझ जाना चाहिए इफ़ द कंपाउंड नेम इज़ फेरस देन इट इज़ valency is iron valency is 2. If it is ferric then it will become Fe3. Similarly for copper and this Pb. Radical, or we call it as polyatomic ion. What is polyatomic ions? That is the group of atom that bear a charge. सिंगल एलिमेंट के ऊपर चार्ज है तो हम जनरली उसको बोलते हैं आयन. अगर एक ग्रुप में उनके ऊपर चार्ज है, ग्रुप में ग्रुप लूज़ कर रहा है इलेक्ट्रॉन या गेन कर रहा है, ग्रुप ऑफ एटम मीन्स एक से ज़्यादा एटम्स इकट्ठे मिलके चार्ज इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रहे हैं या गेन कर रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं पॉली एटॉमिक आयंस. फॉर एग्जांपल कार्बोनेट, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या करता है गेन करता है, सो दैट इज पॉली एटॉमिक आयन. सो फॉर केमिकल फॉर्मूला, व्हाट इज केमिकल फॉर्मूला? बेसिकली इट इज़ द सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कंपाउंड, कि हम किसी कंपाउंड को सिंबल में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं. तो केमिकल फॉर्मूला बनाने के लिए आपको रेडिकल्स या जो उसमें एटम्स यूज़ हो रहे हैं उनकी वैलेंसी, उसका चार्ज आपको लर्न करना है. फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन H+, 1 चार्ज, सोडियम 1 चार्ज, अमोनियम NH4+1, क्लोराइड -1. तो ये आपको कैसे आता है, ये आपको स्ट्रक्चर ऑफ एटम से आपको ये चीज़ें क्लियर है कि क्लोरीन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और उसने एक गेन करना है, तो वो क्या बनाएगा, कौन सी रेडिकल बनाएगा, क्लोरीन -1. तो टेबल्स जो आपकी बुक में दी हैं इनको अच्छे से लर्न करो, तभी आप केमिकल फॉर्मूलाज लिख सकते हो. मेक केमिकल फॉर्मूलाज.
how we write chemical formulas. There are some rules for writing chemical formula. For example, sodium oxide. Sodium, so symbol of sodium is Na and symbol of oxygen is O, right? Now, आपको पता है सोडियम जो है इलेक्ट्रॉन लूज करता है, तो जो भी पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है उसको हम हमेशा लेफ़्ट साइड पे लिखेंगे, जो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है उसको हमेशा कहाँ लिखना है, राइट साइड पे. इनकी वैलेंसी ऊपर लिख लो या इनके पैरों में लिख लो. सोडियम की वैलेंसी 1, ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या है 2 या -2. माइनस की वजह से हमने इसको इधर राइट साइड पे लिखा है और लेफ़्ट साइड पे प्लस को लिखा है. तो जब हमने कंपाउंड बनाना है, केमिकल फॉर्मूला लिखना है, तो पॉजिटिव चार्ज की वैलेंसी दूसरे के पैर में लिखनी है, क्रिस क्रॉस करना है. Means sodium has one valency, so we will write 1 in the foot of oxygen, and oxygen has 2 valencies, so we will write the valency of oxygen in the foot of sodium. So formula will become Na2O1. 1 को हम लिखते नहीं, it is automatically, it can be written as Na2O. For example, calcium chloride. Symbol of calcium Ca. इसके ऊपर कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव, तो 2. इसको क्या, कौन सी साइड लिखना है हमें, लेफ़्ट. और क्लोरीन जो है हमारा कौन सा चार्ज लेता है, नेगेटिव, तो क्लोरीन को किधर लिखेंगे हम, राइट साइड पे. तो कैल्शियम वैलेंसी 2, क्लोरीन वैलेंसी -1. तो कैल्शियम की वैलेंसी क्लोरीन के फुट में और क्लोरीन की वैलेंसी कैल्शियम के फुट में. तो क्या फॉर्मूला बनेगा, CaCl2. फॉर एग्जाम्पल, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम NH4+1. तो ये टेबल लर्न करोगे तभी आप ये केमिकल सिंबल्स, आप केमिकल फॉर्मूला बना पाओगे, और ये फॉर्मूलेस आपको खुद बनाने हैं. एग्जाम में आपको आएगा, राइट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड, सो यू हैव टू राइट लाइक दिस वे, NH4+1 OH-1. उसके पैर में भी 1 गया और इसके फुट में भी 1 गया, तो हमारे पास क्या फॉर्मूला बन गया, NH4OH. सिमिलरली सोडियम कार्बोनेट, सोडियम +1, कार्बोनेट CO3 2-, तो इसकी वैलेंसी इसके फुट में, इसकी वैलेंसी इसके फुट में, तो क्या बन गया हमारे पास, Na2CO3. So like this way you have to practice and you have to learn the chemical formulas. Of molecular mass or formula mass. Basically these two are same, कि कोई भी आपके पास कंपाउंड है तो उसका फॉर्मूला लिख के उनकी इंडिविजुअल एटम के एटॉमिक मासेस लिख के जब हम उनको प्लस करते हैं तो वो क्या होता है, हमारा मॉलिकुलर मास और फॉर्मूला मास. फॉर एग्जांपल, कैल्शियम कार्बोनेट और कार्बन डाइऑक्साइड. कार्बन डाइऑक्साइड, द एटॉमिक मास ऑफ कार्बन इज 12, ऑक्सीजन इज 16, फॉर्मूला CO2. तो कार्बन का एक एटम है तो 1 × 12, और ऑक्सीजन के कितने एटम्स हैं, यूज़ हो रहे हैं 2, तो एक एटम का एटॉमिक मास है 16, तो 16 × 2, तो आपका क्या आ जाएगा, 12 + 32, ये क्या हो जाएगा, 44 U एटॉमिक मास यूनिट. सो लाइक दिस वे यू हैव टू कैलकुलेट द मॉलिकुलर मास. 20 तक आपको लर्न करना है. अगर और कोई ऐसा कंपाउंड दिया होता है तो उसका मास जो है, एटॉमिक मास आपको एटम का इंडिविजुअली दिया होगा. तो ये सारा आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है, and then the mole concept will be discussed in the live class.